Hello, my dear students. Very good more learning to all of you. My name is Shadab and I'm your MSD sir, and you are watching Just NEET Unacademy Learn and Evaluate, right? So I hope all of you are very much excited for this session, and I'm also very much excited to teach you the relation between the kinematics graphs and your memory, whatever you have learned. So आपने जो भी चीजें सीखी हैं उनको काइनेमेटिक्स ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे मोशन में, तो ये लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी थी। एंड गाइस, वी ऑल आर कमिटेड फॉर योर सक्सेस एंड यू आर वाचिंग जस्ट नीट लर्न एंड इवैल्यूएट, दैट इज तैयारी जीत की एंड तैयारी नीट की। सो बच्चों, चलते हैं अब हम लोग नए सेशन की तरफ, और ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही एक्साइटेड सेशन होने वाला है, और इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। इतनी सारी चीजें सीखोगे कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो सॉल्व करके भी देखोगे। इसीलिए हम लोग ने ये इस टैग लाइन को यूज किया है, लर्न एंड इवैल्यूएट, यानी तैयारी जीत की और तैयारी नीट की। होता क्या है कि हम चीजें सीखते चले जाते हैं, लेकिन हमको वो समझ में नहीं आता है कि कितनी चीजें सीखी हैं, कितना हमने ग्रास्प किया है। तो अब हर सेशन में अनअकैडमी जस्ट नीट के हर एक सेशन में आप सीखोगे और फिर उसको इवैल्यूएट भी करोगे। तो इतनी चीजें जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन। और फिर से आप याद रखना, अनअकैडमी, unbelievable, unstoppable and unbeatable. And here is my introduction. I am going to teach you physics for that NEET. Okay, my name is Shadab, and the near dear gives me the nickname, that is the MSD Sir, right? And I have a quite 14 years of teaching experience, and I taught and mentored 50,000 students till now, online as well as offline, right? And you can see I have 12,000 plus minute watch time, view time of the recorded video lectures on the YouTube on different channels. And I also been involved in teaching for online students, right? And I have 500 plus minutes of live online teaching to the students like you. Okay, so this is all about me, and I hope most of you already know me. And now I'm going to start the session, that is just NEET, right? Learn and evaluate kinematics graph. But before going to start, here is some information for you, and you can see here step 1, आपको प्ले स्टोर में जाना है, अनअकैडमी टाइप करना है। अनअकैडमी टाइप करने के बाद आपको इस तरह का अनअकैडमी लर्निंग ऐप मिलेगा बच्चों। तो जो भी लर्निंग ऐप मिलेगा अनअकैडमी लर्न, आप उसको अपने फोन पे इंस्टॉल कर लेंगे, एंड्रॉइड पे, और फिर आप सारी क्लासेस बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इंटरप्शन से देख पाएंगे। और उसमें आपको प्रोफाइल बनाना है, अपने क्रेडेंशियल उसमें एंटर करने हैं। एंटर करने के बाद ये देखो, जैसे राहुल बच्चे ने अपना प्रोफाइल बनाया है, तो आपको जाना है प्लस पे। ठीक है, आप क्लिक करेंगे नीट में, प्लस पे जाएंगे। प्लस में जाने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे कोर्स, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, सो यू विल सिलेक्ट नीट, एंड अगला स्टेप आपको दिखेगा सब्सक्रिप्शन, राइट? सो बच्चों, गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद फिर आप यहां पे सब्सक्राइब करेंगे, और फिर सब्सक्रिप्शन के लिए आपको टाइम के लिए लिमिट के हिसाब से आपको यहां पे दिख रहा है 1 month, 3 month, 6 month, 12 month and 24 months. So I will recommend for the students who are in class 12, they can buy 12-month subscription, and the students who are in just past class 10 and they are going to just entering class 11 and start their preparation, so they will opt for the 24-month, because this is more economical, as you can see on the screen. And one more thing from my side, that you can enter, you should enter, I think, MSD live. This is my code, my referral code. When you enter this code, then you will get more discount on that fee. As you can see here, you can write something MSD live. You can take the screenshot of this and you will note down this referral code. Okay, I hope all things are clear, and now let's start the session that you all of know. The session is, what is the session? Here is kinematics graph, learn and evaluate. So the concept क्या है बच्चों? Concept देखो, first get the knowledge, then you will learn, then apply, then practice and then evaluate. क्योंकि evaluation बहुत जरूरी है। हम वेट नहीं करेंगे अपने टेस्ट का, 1 हफ्ते का, 7 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, पार्ट टेस्ट का, यूनिट टेस्ट का, कोई वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो अभी सीखा वो हमको जानना है कि हमने कितना सीखा, राइट? So चलिए स्टार्ट करते हैं। So this is the first step. As you know, you are watching Unacademy Just NEET, unbelievable, unstoppable and unbeatable, and this channel is Just NEET Learn and Evaluate. So guys, you are watching MSD Sir, and here good more learning to all of you, right?
So here you can see the first step is learn. Okay, so what we are going to learn in last session, lecture number 1, I already told you something about the graphs. कुछ टिप्स मैंने बताई थी, कुछ चीजें सीखी थी आपने और उनको इवैल्यूएट करके भी देखा था। जो भी इवैल्यूएशन आया था, अब हम उसमें से कुछ और चीजें ऐड करेंगे और आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप अब तक सभी लोगों ने लाइक कर दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो इस वीडियो को अभी लाइक करें और फिर हम लोग आगे चलते हैं फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप इज लर्न। ओके, सो हियर यू कैन से वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग and here is a very important message. Okay, so the message is failure and then success. There is a gap and that gap you can fill with learning, right? That gap you can fill with learning. That's why we are saying learn and then evaluate. So first step is learn and let's see what we are going to learn today. So graphical motion analysis या graphical analysis of motion ये कंटिन्यूड है। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। हमने आपको वेलोसिटी से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्स टाइम यानी पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ और उसका स्लोप क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, ये इसके लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्लास है वो चल रही है रिवीजन वाले बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है। तो मैं आपको क्विक रिवाइज कराऊंगा और रिवीजन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे कंसेप्ट में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है ग्राफिकल क्वेश्चंस में, राइट। काइनेमेटिक्स के साथ साथ आगे के जो चैप्टर्स होते हैं उनमें वो ग्राफिकल की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफिकल वाले डर को खत्म करेंगे, क्योंकि डर के आगे नीट है। मैंने आपको कल भी बताया था डर के आगे नीट है, इसलिए आपको जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता है उसके आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो और इतने क्वेश्चन सॉल्व करो कि वो डर को आपसे डर लगने लगे। ठीक है, सो यहां पे हम लोग देखने जा रहे हैं, कल मैंने आपसे कहा था इसमें 2 चीजें बची हुई हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, एंड दैट नेक्स्ट चीज और रिमेनिंग पार्ट is the average speed and the average velocity. We can also find that average speed and average velocity definitely from the graph. So now I am going to teach you, I am going to tell you and I am going to tell what is average speed and average velocity and how can we find with the help of the graph. Okay, तो सभी बच्चे तैयार हैं तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लें, and because I am going to tell you some key points also, so you all have to note that key point in your notes or in your copy. ये सारी चीजें आपको नोट करनी है और उसके बाद फिर हम लोग क्विजेस करेंगे। तो यहां पर आपको दिख रहा है एवरेज स्पीड। ओके, सो एवरेज स्पीड के बारे में आपके पास फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, समझनी है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ टाइम इंटरवल, राइट। वो टाइम इंटरवल थोड़ा सा लॉन्ग होता है, जैसे ही टाइम इंटरवल को हम शॉर्ट कर देते हैं दैट टाइम इंटरवल इज नाउ वेरी शॉर्ट एंड दिस इज नोन एज व्हाट, yes, infinitely small time. So first thing, what is actually the average speed or average velocity? You can see here the formula, the total distance traveled, total distance covered, total distance traveled divided by total time interval or the total time taken. So here the formula you can see time interval, right? Average velocity, total distance traveled and time interval. और यहां से अगर आपको वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं एवरेज स्पीड की, तो आप इसको ध्यान रखें और टोटल डिस्टेंस को हम लोग डेल्टा एस और टोटल टाइम टेकन को यहां पर टी से डेल्टा टी से डिनोट कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, आपको पता है स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट। बट नेट डिस्प्लेसमेंट आपको कैसे निकालना है, दैट नेट डिस्प्लेसमेंट बच्चों मस्ट बी एडेड और कैलकुलेटेड बाय वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट distance is a scalar quantity and the displacement is a vector one. So अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका रिजल्टेंट भी वेक्टर होगा और यहाँ पे हम लोग बच्चों कैलकुलेट करेंगे उसको डिस्प्लेसमेंट को और ये वेक्टर फॉर्म में होगा और वेक्टर फॉर्म को हम फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं, टाइम को भी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे और इस तरह से हमको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। ये तो एवरेज वेलोसिटी को रिवाइज कर लिया आपने। एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप यहां पर सभी बच्चों को ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे
total or resultant or net displacement that should be calculated by the vector rule of addition divided by the total time taken, right? So I hope you already know the formula, और जिनको नहीं पता है उन्होंने नोट कर लिया होगा। की पॉइंट ये है कि वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट यूज करना है, स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अब जो दूसरा पार्ट आता है दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी आपके पास जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो स्पीड के टर्म में निकालनी है, यानी डिस्टेंस से निकालनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो आपको डिस्प्लेसमेंट में निकालनी है। बट ये जो टर्म इंस्टेंटेनियस है बच्चों, इसका क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस का मतलब है जो आपका टाइम इंटरवल होना चाहिए दैट इज वेरी वेरी स्मॉल बच्चों, दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। और अगर ये वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब डेल्टा टी वेरी स्मॉल होता है देन इट टर्न्स टू बी dt, राइट? dt मींस वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, और ऑब्वियसली तब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो भी वेरी स्मॉल हो जाएगा। यहां पर आप देखें इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इंस्टेंटली डिफाइंड, राइट, एज एवरेज स्पीड। बट द थिंग इज दैट in instantaneous term you have to use that time is very very small, infinitely or extremely small, as you can see here on your screen that time is extremely or infinitesimally small। infinitely small होगा, extremely small होगा, बहुत छोटा होगा, और यानी ये जो आप दिखा रहे होगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, you know better that is the speed at a particular instant। मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, आपने अपने स्पीडोमीटर को ऐसे देखा और नजर हटा ली, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आपको एक सेकंड के लिए, एक इंस्टेंट के लिए दिखती है, ठीक है। तो आई होप आप इंस्टेंटेनियस भी समझ गए होंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी समझ गए होंगे, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी समझ गए होंगे। ये तो बेसिक कांसेप्ट था। नाउ विल सी that how we can calculate with the help of graph, xt graph, okay? कल हम लोग ने देखा था xt graph जो भी होता है वो उसका स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, कल मैंने आपको बताया था कि सपोज ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है, और ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, राइट? ये ग्राफ है, एक्चुअल में ग्राफ ये है, ठीक है। अगर हम किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखते हैं, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखें, जब टाइम इंटरवल ये जो t है, यहां से ये टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा कर दें, इस इंस्टेंट पर जो स्लोप होगा दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर हमारे पास एक ग्राफ दिया है और अगर इस ग्राफ में कोई भी ग्राफ में हम किसी इंस्टेंट पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एक किसी पर्टिकुलर टी पे है और इसका जो स्लोप होगा, मान लो यहाँ पे एक अल्फा है, इस टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, टी है। अब अगर देखोगे कि जो tan अल्फा होगा ये एक पॉइंट का स्लोप है, तो ये tan अल्फा आपको क्या बताएगा बच्चों, ये बता रहा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, करेक्ट। सो आपको ये ध्यान रखना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो किसी एक पॉइंट पे, एक्सटी ग्राफ के किसी एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब चलते हैं, अगर हम ग्राफ के किन्हीं दो पॉइंट को, चलो हम लोग यहां पे कलर चेंज कर लेते बच्चों तो आपको अच्छे से दिखेगा। अगर हम किन्हीं भी दो पॉइंट को चूज करें, सपोज यहां पे हमने दो पॉइंट चूज कर लिए, इस पॉइंट का टाइम क्या है t2 एंड दिस पॉइंट इज गिवन बाय t3, राइट। अगर आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, इफ यू कैन ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स लाइक दिस, ओके, the slope of that straight line joining between two points, slope of that straight line, suppose this angle is theta, so यहाँ पे जो tan theta होगा उसको क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे बच्चों एवरेज स्पीड। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, या यहाँ x है, पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वो हो जाएगा एवरेज स्पीड, राइट। और वो एवरेज स्पीड बच्चों कहां से कहां तक की होगी, ध्यान से देखना, वो एवरेज स्पीड कहां से कहां तक की होगी, एक बार और बताते हैं, चलिए देख लेते हैं। वो इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर हम किसी एक ग्राफ के दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये दो पॉइंट है ना, इन दो पॉइंट को आपने ऐसे ज्वाइन किया
और इसका स्लोप आप देख रहे हो, ये टी एक्सिस है, राइट। यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट एक्सिस दिया हुआ है या पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। अगर हम इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इसका जो एंगल थीटा होगा, यहां पर एक पॉइंट है T2, इस पॉइंट को कहा जा रहा है बच्चों T3, तो ये जो स्लोप आएगा इसको आप कहोगे tan थीटा। अब tan थीटा इंस्टेंटेनियस नहीं है, tan थीटा जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस तब होती वो किसी एक पॉइंट का अगर स्लोप देखती। आपने एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की होती, आपने दो पॉइंट को ज्वाइन किया है, तो यहां पे ये कहलाएगी एवरेज। ये भी एवरेज होगी, कहां से कहां तक? T2 से T3 तक, राइट। सो बच्चों ये T2 से T3 तक की एवरेज स्पीड है। तो आप ध्यान रखना, एक पॉइंट पे टेंजेंट होगी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप देखोगे अगर, तो वो एवरेज स्पीड होगी। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफ में हमें कैसे देखना है, फिर से मैं बता रहा हूं। अगर यहां पर आपको टी बताया गया, यहां पर कहा गया है ये पोजीशन है, ठीक है, और अगर आपको यहां पे इस तरह का एक ग्राफ या किसी भी तरह का एक ग्राफ दिया गया और उस ग्राफ में आपने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की और उस टेंजेंट का स्लोप देखा, देखिए यहां पे स्लोप है, इसको आप अल्फा कह रहे हो, तो जो tan अल्फा होगा वो क्या कहलाएगा? वो v इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, करेक्ट। किसी और पॉइंट पे देख लो, चलो कलर हम चेंज करते हैं ताकि आप इसको प्रॉपर डिफरेंशिएट कर पाओ। किसी और पॉइंट पे, जैसे ये एक पॉइंट है बच्चों, राइट, और इस पॉइंट पे आपने एक स्लोप ड्रॉ किया, राइट, एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इस पॉइंट पे ये बीटा मिल गया, तो आपको भी ये tan बीटा होगा, ये v इंस्टेंटेनियस होगा। ये वाला होगा इस टाइम t1 पे, ये वाला होगा एक दूसरे टाइम t2 पे, जहां पर डिस्प्लेसमेंट भी अलग है और टाइम भी अलग है। तो आई होप आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम इंस्टेंटेनियस बच्चों कैसे निकालते हैं और जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत अच्छे से बच्चों समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो भी मैंने आपको बताई थी, उसके लिए भी बच्चों क्या करना था, आपको एक ग्राफ, किसी भी तरह का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। मान लीजिए ये है पोजीशन और ये है टाइम, ठीक है। तो एक्सटी ग्राफ अगर इस तरह का दिखाया गया है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इनके दो पॉइंट, जिन पॉइंट्स के बीच में आपको कैलकुलेट करना है, राइट। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसको हम कह रहे हैं टाइम t1 और ये वाले पॉइंट को बच्चों आप क्या बोल रहे हो, देखो जल्दी से, इसको कह रहे हो टाइम t2, राइट। अब अगर आप इन दोनों पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर देते हैं, करेक्ट, ऐसे ज्वाइन किया, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, और ज्वाइन करने के बाद जब आप इसको आगे ऐसे देखें, इसका टी एक्सिस के साथ, ये मैंने कल बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस किया था कि टी के साथ जरूर आपको स्लोप हमेशा देखना है, हमेशा टी के साथ देखना, चाहे वो वर्टिकल में दिया हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल में दिया हो, और वो आपको पॉजिटिव टी एक्सिस के साथ देखना है। ये एंगल बच्चों यहां से थीटा आता है, तो आप ये tan थीटा क्या बोलोगे, ये tan थीटा होगा बच्चों v एवरेज, और ये v एवरेज कहां से कहां तक का होगा बच्चों, वही एवरेज होगा t1 से t2 तक, करेक्ट। सो v एवरेज आपको समझ में आ गया, v इंस्टेंटेनियस समझ में आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों आपके समझ में आ गई है। अब हम लोग देखते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बाद क्या आएगा, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्योंकि आपको पता है कि वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या बता रहा था, वीटी ग्राफ जब आपने देखा था तो उसका स्लोप आपको बता रहा था एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन भी दो तरह का हो सकता है, वन इज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एंड द सेकंड वन इज एवरेज एक्सीलरेशन। तो पहले तो हम लोग वो डेफिनेशन के हिसाब से मैथमेटिकली देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली द एवरेज एज वेल एज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, फिर हम लोग उसको ग्राफ से सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनअकैडमी, जस्ट नीट, अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल, अनबिलीवेबल में और आगे क्या क्या है।
यहां पे हम लोग देखने जा रहे हैं when velocity of moving object particle changes with time. When velocity point to be noted, changes with time, we can say it is accelerated, right? Maybe negative or positive acceleration, maybe velocity decreasing or increasing, that is the another matter. यहां पे आपको जो डेफिनेशन दिख रही है उस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखें. एवरेज एक्सीलरेशन यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए. एवरेज एक्सीलरेशन, a average, final minus initial, this is the change in velocity. T final minus t initial, change in time, time taken for that change in velocity, that is the time interval. So this is the change in velocity divided by time interval. This is average acceleration. So instantaneous acceleration is also defined in a similar way. The only difference is that when delta t tends to almost zero, or you can say delta t is equal to dt, right? जब जिस टाइम के लिए आप जिस इंटरवल के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर बच्चों वो बहुत छोटा होगा तो हमें जो भी यहां से मिलेगा दैट इज इंस्टेंटेनियस. अगर वो थोड़ा सा ज्यादा है, सफिशिएंट टाइम इंटरवल है, तो हमको जो भी चीजें मिल रही होंगी दैट इज एवरेज. ये मैंने आपको बता दिया. तो इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, देखो साइड में आप, यहां पर इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन हो जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ए. ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है. यहां पे देखो लिमिट लग गई t टेंडिंग टू जीरो. जो टाइम इंटरवल है डेल्टा t है दैट शुड बी वेरी स्मॉल या ऑलमोस्ट जीरो. ओके, ऑलमोस्ट जीरो है. तो आप अगर इसको देख रहे हो तो जो डेल्टा t है वो dt हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी भी स्मॉल dv हो जाएगा. और उस इंस्टेंट पे जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? Again, acceleration is instantaneous, right? And instantaneous as well as average velocity, you know, that is a vector quantity and it must have the direction. So here is a note that you all should remember, right? And that note you all should remember, this is the star point. अपनी कॉपी में नोट करो. Acceleration is a vector quantity, आपको सभी पता होगा, whose direction is same as that of change in velocity. ये बहुत जरूरी है बच्चों. एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होता है. और ये आप गलत करते हो, 80% बच्चे गलत करते हैं जब भी आपसे सर्कुलर मोशन में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे वेलोसिटी इतनी थी, 90 डिग्री घूमने के बाद वेलोसिटी इतनी है, ये वेलोसिटी इनिशियल है, ये वेलोसिटी फाइनल है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर. तो इसको कैसे करना होता है, आपको डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना है. चेंज इन वेलोसिटी होता है बच्चों v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल, राइट? सो v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल. तो देखो v फाइनल कहां है बच्चों, ये v फाइनल हो गया, राइट? नो, ये है v फाइनल, राइट? सो ये नहीं लिखेंगे हम, v फाइनल प्लस में लिखेंगे. तो v फाइनल बच्चों ये है. अब इसमें माइनस v इनिशियल है, सो v इनिशियल ये है, तो माइनस v इनिशियल इसका रिवर्स होगा, ये हो गया बच्चों इसमें माइनस v इनिशियल, करेक्ट? अब आप देखोगे जो रिजल्टेंट आएगा, मैं कलर चेंज करता हूं जिससे आपको बच्चों दिखे अच्छे से. अब आप देखोगे जो इनका रिजल्टेंट है वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से, वो ऐसे आएगा, राइट? सो ये डायरेक्शन होगी बच्चों चेंज इन वेलोसिटी की. और यहां कहा गया है एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी, along the direction of change in velocity. So change in velocity ये है, तो आपको यहां से एक्सीलरेशन इधर मिलेगा और ये देखो towards the center है, so ये centripetal acceleration कहलाता है, करेक्ट? सो एक्सीलरेशन की एक और मिसकंसेप्शन होता है कि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन जरूर है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. सो बच्चों को क्या लगता है कि वेलोसिटी चेंज होने से एक्सीलरेशन आता है. नो 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 नो, राइट? एक्सीलरेशन की एक्चुअल डेफिनेशन है टोटल फोर्स और नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास. फोर्स लगेगा, फोर्स से एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी चेंज होगी. ध्यान रखना, उल्टा नहीं जाना है, सीधा जाना है. अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, that external force produced acceleration and that acceleration will produce the change in velocity, right? So force से acceleration, acceleration से velocity, इस तरह से ये concept है change in velocity
इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, ये इसका मेजरमेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपने बहुत सारी चीजें सीख ली। यहां पर भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस को देखते हैं। सो सपोज इस तरह का बच्चों ग्राफ है, ठीक है, और इस तरह के ग्राफ में अगर हम आगे चलेंगे तो इस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट ले लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, लेकिन उससे पहले ये आपको इंश्योर करना होगा कि ये वी टी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कंफ्यूज मत होना, राइट। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये किसी पॉइंट पे टेंजेंट है, ये इसका ग्राफ इस तरह से जा रहा है। अब हमने उस पॉइंट पे उसका थीटा निकाला तो उसका tan थीटा लेने पे आपको इसका स्लोप मिलेगा, और ये स्लोप जो देगा वो एक्सीलरेशन देगा, क्योंकि vt का स्लोप है और ये एक पॉइंट पे है, तो बच्चों ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा। ओके, सो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। चलते हैं कि एवरेज एक्सीलरेशन कैसे देखेंगे। एवरेज एक्सीलरेशन का फंडा भी उसी तरह से है कि कोई भी ग्राफ है या इसके अलावा भी कोई भी ग्राफ हो सकता है बच्चों, ठीक है। सो हम आपको अब की दूसरा ग्राफ लेते हैं, क्योंकि कई बार से यही वाला ग्राफ यूज हो रहा है। मान लीजिए हमने ग्राफ कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में अगर आप किन्हीं दो पॉइंट को चूज करें, जैसे एक पॉइंट ये है और फिर यहां से चलें तो दूसरा पॉइंट ये है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, T1। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, इस पॉइंट को बोला T2, करेक्ट। अब T1 और T2 के बीच में, बट इंश्योर करिए कि ये VT कर्व है, इंश्योर करिए कि VT कर्व है। अगर आपने ग्राफ के किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन किया ऐसे, और उस ज्वाइनिंग लाइन का आपने स्लोप देखा विद रिस्पेक्ट टू टी एक्सिस, तो इस एंगल का जो आप tan अल्फा लेंगे, उस tan अल्फा को आपको क्या मिलेगा, स्लोप, और उसी स्लोप को आप एक्सीलरेशन बोलेंगे। लेकिन यहां पे क्योंकि दो पॉइंट के बीच का एक्सीलरेशन है, तो बच्चों ये एवरेज एक्सीलरेशन होगा। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ग्राफ में जो भी बची हुई चीज थी वो हम सभी ने सीख ली है। अब एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूं कि अभी तक हमने आज के सेशन में क्या सीखा, एक समरी के तौर पे, राइट। पहली चीज सीखी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, करेक्ट। सो हम यहां पे पहली चीज को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कंडीशन क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कंडीशन है कि जिस टाइम इंटरवल में आप कैलकुलेशन कर रहे हो वो टेंडिंग टू जीरो हो, यानी उसको हम लिखेंगे dx/dt, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ में। और वो कैसे पता चलेगा, अगर आप उसका स्लोप, उसमें जो भी ग्राफ जा रहा है उसके किसी एक पॉइंट का स्लोप लेते हो तो इसको आप tan थीटा कहोगे। ये ग्राफ xt होना चाहिए, ठीक है। इससे आपको स्लोप से क्या पता चलेगा, एक पॉइंट के स्लोप को आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर दूसरे पे हम बताते हैं आपको, दैट इज एवरेज वेलोसिटी बच्चों। सो एवरेज वेलोसिटी कैसे मिली थी, एवरेज वेलोसिटी में डेल्टा टी आप कुछ भी ले सकते हो, इसको बोला जाता है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, राइट, या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यही चीज अगर हम बात करेंगे स्पीड में तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन हो जाएगी, राइट। और यहां पे आप क्या कहोगे, इसको डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ से कैसे निकलेगा बच्चों, यहां से अगर आप x लेते हो, यहां से t लेते हो, तो ग्राफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप, यू हैव टू चूज द स्लोप बिटवीन द टू पॉइंट्स, मींस फर्स्ट यू हैव टू ऐड, राइट। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको दो पॉइंट चूज करने पड़ेंगे जिस पॉइंट के बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। देन आप उसको ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद उसका डायरेक्ट स्लोप टी एक्सिस के देखोगे तो यहां जो tan थीटा आएगा वो आपको दे देगा एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। सिमिलरली वी हैव एवरेज एक्सीलरेशन। ओके, सो अभी थर्ड में चलते हैं हम लोग। थर्ड में बात करते हैं बच्चों
इंस्टेंटेनियस, राइट? सो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इसके लिए भी सेम डेल्टा टी दैट मस्ट बी टेंडिंग टू जीरो, और ये बोला जाएगा dv डिवाइडेड बाय dt। ओके, सो dv डिवाइडेड बाय dt, और यहां पे अगर आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे, यहां t हो गया और यहां x हो गया, और इसके लिए अगर आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो वो किसी एक पॉइंट का स्लोप होना जरूरी है। ओके बच्चों, आप किसी एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर आप स्लोप लेंगे, tan थीटा लेंगे, तो ये tan थीटा अगर ये xt, सॉरी यहां xt नहीं होगा, ये होगा vt ग्राफ। तो ये आपको मिलेगा बच्चों क्या, a इंस्टेंटेनियस। सिमिलरली अगर आपको एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, a एवरेज, सो इसके लिए आपको करना पड़ेगा v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t। यहां पे डेल्टा t टेंडिंग जीरो नहीं है। सो फाइनल और इनिशियल वेक्टर फॉर्म यानी वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से आप माइनस प्लस करेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे, और इस तरह से कैलकुलेशन करने पे आपको एवरेज मिलेगा। और ग्राफ में देखने के लिए देखो, मैंने आपको बताया हुआ है पहले से कि ग्राफ में कैसे दिखेगा कि यहाँ टी कर्व है, टी एक्सिस है, यहाँ वी एक्सिस है, और ग्राफ आपको मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, करेक्ट? सो आप किन्हीं दो पॉइंट, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको कैलकुलेशन करनी है, आप वो दो पॉइंट चूज कर लेंगे ऐसे, फिर उन दो पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, और जो ज्वाइनिंग लाइन है आप उसका स्लोप देखेंगे बच्चों, आप ज्वाइनिंग लाइन का स्लोप देखेंगे, ये है tan अल्फा, और ये tan अल्फा आपको क्या देगा बच्चों, ये देगा आपको a एवरेज। तो हमने समरी भी देख ली, क्या सीखा था ये भी देख लिया, तो बहुत सारी चीजें लर्न हो गई हैं। अब अपने पास क्या है बच्चों, यस आई नो दैट यू पीपल आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट क्विज। ओके, सो ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट क्विज? यस, ओके, सो दिस इज द क्विज टाइम। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने क्या किया, लर्न किया, अप्लाई किया, है ना, जाना, यानी कि गेट द नॉलेज and learn how to apply and know, learn, and now next is the time to evaluate, because evaluation is very much important. So guys, ready, कॉपी पेन सभी लोग रेडी हो जाओ, बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाओ, और ऐसा देखो कि आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देना है। कुछ क्वेश्चंस में आपको 30 सेकंड्स दूंगा और कुछ क्वेश्चन में 1 सेकंड दूंगा। तो यहाँ पे सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हो, और कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आंसर करना है, ठीक है? सो आई होप ऑल ऑफ यू रेडी। यस, सो लेट्स मूव। लेकिन बच्चों, क्विज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया हो, प्लीज जल्दी से लाइक करो, और जितने लोग भी देख रहे हो वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, आई एम वेरी मच हैप्पी। लेकिन जो लोग भी नहीं अभी सब्सक्राइब किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। और अभी हम लोग नेक्स्ट बैच और स्टार्ट करेंगे, नीट 2020 का रिवीजन चल रहा है, नीट 2021 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक, एंड देन नीट 2022 भी स्टार्ट करेंगे, और वहां हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, अभी आपके पास एक इंट्रोडक्शन है, एक ऑफर है, और यहां पर आपके पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है मेरे पास देने के लिए आपको, कि आप अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर 2 ईयर के लिए, तो आप प्लीज MSD लाइव कोड को वहां पर अप्लाई करना, रेफरल कोड अप्लाई करेंगे MSD लाइव, then you will get more 10% off on that fee. Okay, so this is a commercial break type of thing you can say, and let's move to the quizzes. यहां पर आपको मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बच्चों, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, और यहां पे रेफरल कोड में आप MSD लाइव अप्लाई करोगे तो फी में 10% मोर डिस्काउंट आपको मिलेगा। ओके, सो दिस इज माय रेफरल कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो क्विज स्टार्ट हो गई है, जल्दी से आप स्टार्ट करो, आपको 30 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करना है। बहुत 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 आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, एक्सीलरेशन टाइम आपको दिया हुआ है, राइट? जो भी एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ आपको यहां पे दिया हुआ है, और इसके हिसाब से आपको आगे कैलकुलेशन करनी है। गो फॉर दैट, गो फॉर दैट, गो फॉर दैट बच्चों। एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग,
अच्छा 30 सेकंड और दे रहे हैं क्योंकि एक्सीलरेशन वेलोसिटी है, आपको एक्सीलरेशन और टाइम का अंदाजा है। एक्सीलरेशन वेलोसिटी में आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। तो देखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लगातार, एक्सीलरेशन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो सोचो क्या होगा। अब आपके पास 15 सेकंड और है सिर्फ। फास्ट बच्चों, बहुत तेजी से चलो, थोड़ा सा जोश में रहो, जोश में। यस, डर के आगे नीट है, याद रखना हमेशा। चलिए टाइम खत्म होता है और अब मैं आपको आंसर दिखाता हूं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। कैसे है डी? पहले तो आप देखो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन ग्राफ से मिल रही है। पहले तो ग्राफ से इंफॉर्मेशन मिली है कि जो वेलोसिटी है बच्चों वो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, राइट। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो आपको कहां कहां पर वेलोसिटी लगातार, देखो यहां से लगातार वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। तो बच्चों ये तो निपट गया, ये भी निपट गया, बचे दो। अब दूसरे में आपको और एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन है कि एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है। देखो यहां से करेक्ट, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग द वेलोसिटी। तो अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन यहां पे वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ में एक्सीलरेशन कौन देता है? स्लोप देता है। यानी स्लोप क्या होना चाहिए बच्चों? डिक्रीजिंग होना चाहिए लगातार। तो इसमें नहीं है, ये निपट गया। तो अब अपने पास क्या बचा? यस, डी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप बहुत सारे बच्चों ने आपने करेक्ट किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो इस क्वेश्चन को नोट करना, जो भी बातें मैंने बताई हैं, जो भी की पॉइंट्स बताए हैं वो कॉपी पे नोट करो, उसको रिवाइज करो, क्योंकि ये भी लर्निंग है ना। हम इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं, इवैल्यूएशन में भी साथ में भी लर्निंग हो रही है। तो आपसे जो चीज छूट जा रही है, जो आपको लग रहा नहीं आ रहा है, वो बहुत जरूरी है, उसको भी नोट करते रहना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करो। अ मैन मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, गो फॉर दैट। तेजी से पढ़ो, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दूंगा, यानी जो टाइमर चल रहा है वो 2 बार कंप्लीट होगा, 1 बार कंप्लीट होने वाला है। गो फॉर दैट, जल्दी से बच्चों, गो 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 फास्ट। 30 सेकंड का टाइमर एक होगा, 30 सेकंड का फिर से दूसरा टाइमर होगा, और आई होप आप इतने टाइम में कर लेंगे। तो पहला टाइमर बच्चों कंप्लीट हो गया, अगला 30 सेकंड का टाइमर, क्योंकि बहुत आसान है, वैसे 30 सेकंड में होना चाहिए, लेकिन हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगे, कुछ बच्चे स्लो पढ़ते हो। गो फॉर दैट, दूसरा टाइमर कंप्लीट होने वाला है बच्चों, जल्दी चलो। 15 सेकंड होने वाले हैं और 15 सेकंड हो गए, लास्ट 15 सेकंड। आसान बहुत है लेकिन बच्चों, आसान बहुत है। अगला मैं कट से आंसर बता दूंगा आपको। एंड नाउ 5 4 3 2 1, दैट्स इट। देखो बच्चों इसका आंसर है सी। क्या कहा था क्वेश्चन ने? बहुत ही आसान सा है। अ मैन मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अलोंग द पाथ शोन एट व्हाट पॉइंट इन हिज एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। देखो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इन सेम डायरेक्शन चाह रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे हर पॉइंट पे देखो, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है, और यहां पे इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको मिल रहा है। एवरेज के लिए क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पी। अब पी से देखो अगर इसको मिलाओगे तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई। चलो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी आप पी से इस बी को मिलाओगे तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। अगर पी से आप सी मिलाते हो, यहां से पी से सी, और सी का खुद का भी डायरेक्शन यही है, पी से सी का भी डायरेक्शन यही है, सो ऑब्वियसली बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? सी। ओके, तो सी करेक्ट आंसर हो गया। आई होप बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर होम हु हैव डन इट करेक्ट। एंड नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थर्ड पे पहुंचते हैं और आप इसको 30 सेकंड में करने की कोशिश करना। ओके, बहुत ही आसान सा है। चलो मैं आपको 2 बार 30 सेकंड का टाइमर दूंगा, यानी 1 मिनट का टाइम है। नीट में भी सिर्फ इतना ही टाइम होता है बच्चों। तेजी से चलिए, तेजी से बच्चों। बच्चों 5 4 3 2 1, 30 सेकेंड्स हो गए हैं। अगला 30 सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट 30 सेकेंड स्टार्ट हो गया है। गो फास्ट, गो फास्ट। कुछ आसान सा पूछा गया है, वेलोसिटी की पॉजिटिव डायरेक्शन भी दी गई है। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों,
लास्ट 15 सेकेंड है, आई होप आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, दैट्स इट, एंड दिस इज द आंसर नंबर सी। तो ऑप्शन सी कैसे हुआ, देखो, अ बॉडी ए इज थ्रोन अपवर्ड, करेक्ट। अब वो जो बॉडी अपवर्ड फेंकी गई है उसके लिए देख लेते हैं। चलिए पहले हम लोग यहां से कलर चेंज करते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। अब यहां देखिए, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद सच अ वेलोसिटी दैट इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट h, सो हमने इसको वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया। अब वो वेलोसिटी ऐसी है कि उसकी मैक्सिमम हाइट होती है h, तो h क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2g। यहां से आप देखोगे v की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 2gh। ठीक है, अभी आपने ऊपर फेंका और इस वेलोसिटी को कहा गया है पॉजिटिव। इसी टाइम यहां से कोई एक बॉल नीचे की तरफ ड्रॉप की गई, यानी उसकी वेलोसिटी होगी 0। एक्सीलरेशन देखिए तो बच्चों, रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा g माइनस जी, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना हो गया 0। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो ये वाली वेलोसिटी 0 है, तो उसकी वेलोसिटी यही रहेगी, और ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 हो गया, यानी कि उसका स्लोप 0 होना चाहिए। तो आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं। फिर यहां से आपको कांस्टेंट वेलोसिटी दिख रही है थोड़े टाइम के, यहां से कांस्टेंट वेलोसिटी, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव, और आपने देखा कि वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगी तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों आपका सी। फिर बाद में यहां पे स्लोप कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि जब तक ये बॉल आएगी ये नीचे टकरा जाएगी, और यहां पे दिया है डजंट रिबाउंड, अगर रिबाउंड नहीं होती है तो उसका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। अब जो एक्सीलरेशन होगा रिलेटिव वो g हो जाएगा, इसलिए आगे का मोशन आप देख रहे हो इस तरह का होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। रेडी रेडी रेडी, गो फॉर दैट, जल्दी से बच्चों रेडी हो जाओ, कॉपी पेन फिर से स्टार्ट कर लो, बैठ जाओ जल्दी से, अलर्ट हो जाओ, और अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही आसान सा, ध्यान से करना, ये 30 सेकंड में हो जाना चाहिए बच्चों। नहीं होगा तो मैं आपको और टाइम दे दूंगा थोड़ा सा, लेकिन हो जाना चाहिए बच्चों, हो जाएगा। आप एक बार कोशिश करो, कोशिश करिए बच्चों। डर के आगे नीट है, डरना नहीं है क्वेश्चन से, डराना है, डरने का नहीं, और आजमाना जरूर है बच्चों। गो फॉर दैट। ओके, 30 सेकंड जरूर हो गए कंप्लीट। एक बहुत ही फेमस हॉकी के प्लेयर हैं, उनकी एक कोटेशन है, हो सकता है आपको वो कोट मालूम हो, यू विल मिस द 100% ऑफ शॉट्स विच यू डू नॉट टेक, राइट, कि आप वो शॉट जरूर मिस कर देंगे जिसको आप आजमाएंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे। तो ट्राई जरूर करना है, आपको क्या मिलेगा, फेलियर कभी नहीं मिलेगी, आप एक सीखोगे, लर्निंग लर्निंग बहुत जल्दी। चलिए हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखो है बी। कैसे है बी, मैं आपको बताता हूं। द एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन शोन इन फिगर, ये दिया हुआ है, राइट। अब आपको क्या निकालना है, वीटी ग्राफ। सो यहां पे देखो एक्सटी ग्राफ का स्लोप बताता है, वी कहां से मिलेगा, वी कहां से मिलेगा बच्चों, वी मिलेगा स्लोप ऑफ एक्सटी, बोलो बच्चों, v कहां से मिलेगा, स्लोप ऑफ xt। अब ये स्लोप ऑफ xt जो दिख रहा है वो पहले देखो t इक्वल टू 0 पे कुछ पॉजिटिव है ना, कुछ पॉजिटिव है, फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, यहां आके 0 हो गया, राइट। तो पहले तो वेलोसिटी पॉजिटिव से शुरू होनी चाहिए, तो ये खत्म हो गया। अब जो वेलोसिटी है उसमें जो वेलोसिटी यहां से 0 हो गई है, और उसके बाद आपने कहा कि ये नीचे जा रहा है, क्योंकि ये पैराबोला है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है, तो ये निपट गया। ठीक है, फिर देखो यहां वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, यहां स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। तो आपने देखा कि ये हट गया, तो सारी कंडीशन को फुलफिल करता हुआ बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से रेडी हो, जल्दी से कॉपी पेन। गलत हो गया कोई बात नहीं, बहुत से बच्चों का सही हुआ है, आपसे भी होगा, आप लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते सही कर लोगे, और अगर गलत हो रहा है तो आप सीख भी रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में, राइट, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं।
थ्योरी आप इसलिए पढ़ रहे हो, सारी चीजें इसलिए सीख रहे हो, फॉर्मूला याद कर रहे हो क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फाइनल टारगेट आपका क्वेश्चन है, तो आप वही सीख रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सटी ग्राफ आपका दिया हुआ है और आपको 80 एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आप, आई होप आप सभी लोग कर लोगे। 1 मिनट का टाइम देते हैं, चलो 60 सेकेंड का, एक बार मूव कर रहा है फिर दूसरी बार और मूव करेगा, गो फॉर दैट, फास्ट एज यू कैन, मूव एज फास्ट एज यू कैन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, जो भी चीजें मैंने बताई हैं स्लोप के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, आप ध्यान रखो। 30 सेकेंड कंप्लीट हो गए हैं बच्चों, नेक्स्ट 30 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड का टाइम बाकी है। जल्दी सोचिए और जल्दी से आगे आइए। ओके, नाउ लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स बच्चों, लास्ट 5 seconds, 2, 1, that's the end of the time and the correct answer as you can see on screen. What is that correct answer? D. Okay, why? See here, see here, velocity हमेशा पॉजिटिव थी यहां तक, उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव हुई, लेकिन निगेटिव 0 होने के बाद हुई है। ठीक है, सो पहले तो वेलोसिटी पॉजिटिव डिक्रीज हो रही है ना, पहले देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है और धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। सो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीज हो रही है, सो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। और लास्ट क्वेश्चन में आपने जो स्लोप देखा था वो कांस्टेंट, और वैसे भी अगर पैराबोला है, पैराबोला में एक चीज मैं बता दूं, पैराबोला मतलब टी स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू समथिंग इनटू टी स्क्वायर। सो वेलोसिटी देखोगे तो dx बाई dt इक्वल टू k इनटू t, यानी टाइम डिपेंडेंट है। और दोबारा एक्सीलरेशन d2x बाई dt2 देखोगे तो ये हो जाएगा 2k, यानी कि कांस्टेंट। अगर पैराबोला है तभी हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं कि यहां से आपने एक बॉल को ऊपर फेंका v वेलोसिटी से, देखो वेलोसिटी धीरे 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 कम हुई, यहां जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, और फिर यहां से वापस आते हुए वेलोसिटी कैसे हुई? नेगेटिव हुई, राइट? लेकिन एक्सीलरेशन चेंज हुआ नहीं, एक्सीलरेशन इज स्टिल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज -g। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 5 डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सिंपल है, अच्छे से हो जाना चाहिए। कैलकुलेट क्या करना है? सिमिलर ग्राफ है, you have to find a speed time graph, you have to find a speed time graph, you can do it very easily। 30 सेकंड है आपके पास, अभी पहला 30 का टाइमर चल रहा है आपकी स्क्रीन पर, और फिर से 30 का एक और टाइमर चलेगा, तो आपको 30 प्लस 30 60 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। 30 सेकंड कंप्लीट होते हैं, जल्दी से सोचिए आपको क्या करना है। आंसर बताते जाओ बच्चों, वीडियो को लाइक करते जाओ प्लीज, और आंसर भी बताते जाओ, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। ओह वाओ, वेरी नाइस, एवरीबॉडी इज गेटिंग द आंसर, सो नाइस ऑफ यू गाइज। चलिए आगे बढ़ते जाइए। ओके 10, लास्ट 5 सेकेंड बच्चों, लास्ट 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1, and here is the answer, answer number C। The question is xt graph of a particle moving along a straight line। वो आपको पता है पहले का ग्राफ है स्पीड टाइम, सो स्पीड भी वेलोसिटी जैसा होगा। यहां देखो क्या हो रहा है कि ये स्लोप डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है, तो 0 से नहीं स्टार्ट हुआ, 0 से नहीं स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फिर एक बार बीच में 0 हो रहा है, और फिर यहां से अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो यहां 0 हो रहा है, यहां 0 एक ही बार हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ, तो बचा कौन सा? आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से करेंगे। स्टार्ट हो गया है, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ध्यान से सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हो सकता है कैलकुलेट करना हो सकता है कैलकुलेट नहीं करना हो सकता है साफ दिख रहा हो, क्योंकि वीटी कर्व दिया है और आपको कुछ चीजें पूछी हुई हैं, तो ये 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड बाद मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत आसान सा है, ज्यादा टाइम नहीं देना है।
मूव फास्ट बच्चों, आई होप सभी लोग आसानी से कर रहे होगे। ओके, सो हियर इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां से दिया, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो, एक तो यहां आ रहा है रेस्ट पे, एक यहां कहीं पे आ रहा है और एक यहां कहीं पे आ रहा है। तो आपके पास 3 सेकंड पे क्या रेस्ट पे है? नहीं है, ये इनकरेक्ट हो गया। 5 सेकंड पे, क्योंकि यहां पे देखो बच्चों ये बीच में नहीं है, कैसे? क्योंकि ये 10 है और ये 20 है और ये 2 है, तो ये बीच से तो पास नहीं करेगी, तो 5 भी नहीं होगा। फिर आपको 8 सेकेंड, यस ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए ये करेक्ट है, नन ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, चलो फिर से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए नए जोश के साथ। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 फिर से बैठ जाओ, अलर्ट हो जाओ, कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन। यो, करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखो। आइडेंटिफाई रीजन इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन मैक्सिमम पूछ रहा है बच्चों, एक्सीलरेशन। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सो ट्राई टू मूव फास्टर एज यू कैन। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान रखना, नीट में फिजिक्स की इंपॉर्टेंस, नीट में फिजिक्स की इंपॉर्टेंस, सारा सिलेक्शन फिजिक्स पे डिपेंड करता है, इसलिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, तो 30 सेकंड के बाद मैं 45 सेकंड दे रहा हूं। अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, 5 सेकंड बचे हैं, और फिर ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट आंसर, यू कैन सी 4 to 6। क्या पूछा है? रीजन इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन, राइट? सो एक्सीलरेशन वीटी से कहां मिलता है? स्लोप। तो कहां पर स्लोप सबसे ज्यादा है? स्लोप को देखना ध्यान से, स्लोप का मतलब ये कम स्लोप होता है, ये जीरो स्लोप है, ये इनफाइनाइट स्लोप है, ये तो सबसे ज्यादा स्लोप आपको सीधे देखने से मिलेगा ये, और ये रीजन आपका 4 to 6 है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में भी कुछ आपसे पूछा गया है, बहुत ध्यान से समझना, इसके लिए मैं आपको 30 + 30 यानी 60 सेकेंड्स दे रहा हूं। ध्यान से करिए बच्चों, 60 सेकेंड्स हैं आपके पास। फास्ट, टाइम जाने वाला है। लास्ट सम सेकेंड्स, लास्ट 5, 30 में एक बार और 30 मिलेगा। डोंट वरी, नेक्स्ट 30 स्टार्टेड, नेक्स्ट 30 स्टार्टेड, गो फॉर दैट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पूछा गया है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन देन इट्स पोजीशन एट t = 2 सेकेंड, t = 2 सेकेंड पे देखना है। तो वेलोसिटी कर्व का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, t सेकेंड पे देखना है। तो 2 सेकेंड में कितना पहुंच गया है वो एरिया से मिलता है। आपसे कहा था रिवाइज करते रहना बच्चों। आई होप सबको एरिया निकालना आ गया होगा। ओके, सो हियर इज द आंसर -5। हाउ, लेट मी टेल यू। आपसे कहा है x0 में यहां से स्टार्ट हुआ, t = t सेकेंड आपने ढूंढा, तो t = 2 सेकेंड यहां मिला, इसको आपने यहां से ज्वाइन किया, इसका एरिया, ये एरिया कैलकुलेट करना है। ये एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस है आपके पास 2 और हाइट थी इसकी 10, सो 2 कैंसिल हुआ और ये आपको मिल गया +10। तो डिस्प्लेसमेंट +10 हुआ। स्टार्टिंग में कितना था? -15, +10 और मूव किया, किस पोजीशन पे पहुंच जाएगा? -5। सो -5 ए आंसर है। आई होप आसान सा क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू हु हैव डन इट करेक्टली। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट क्वेश्चन, and just take your copy and pen and be ready, be alert. Here is the next question on your screen. Question number 10. Go for that. Maximum displacement of the particle that we have to find. It's an easy one. बहुत ही आसान सा है। I hope सभी लोग कर लोगे। Go 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 for that. जल्दी से, इसके लिए आपको मिलेंगे 30 + 30, 30 + 30। बच्चों टाइमर में आपको 30 + 30 मिलेंगे, जल्दी से चलते जाओ। ओके,
सो नाइस ऑफ यू, जितनों ने भी सॉल्व किया, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, यो फास्ट। लास्ट 20 सेकेंड्स है बच्चों, लास्ट 20 सेकेंड्स हैं, आप सॉल्व करो। देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और आपको मैंने बताया था वीटी कर्व का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, और वीटी कर्व में भी आपको मैंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव लेना होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। लास्ट 5 4 3 2 1, हियर इज द आंसर 33.3. Okay, so most of the people are thinking that how it comes. So let me tell you how it comes. So here you can see velocity time graph is given, maximum displacement. So displacement positive, 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 positive till here positive. After that displacement is negative. So it will start decreasing. So maximum displacement point is here. So first of all, we have to find what is that point because it is not at 5. So let's see, this is x. So obviously this would be, because 4 to 6, this is 2. So it would be 2 minus x. So first we have to find the value of x here. Okay. So how we can find the value of x? Let me change the color to tell you about that. You know that this angle is theta and this angle is also theta. Okay, so one triangle is here, one triangle is here. So from one triangle, a smaller triangle, tan theta, you can say perpendicular upon base. From the bigger triangle, from here you can say tan theta is again perpendicular, or iska base hai 2 minus x. So these two tan theta must be equal. Then you will say 10 by x is equal to 20 by 2 minus x. So 10 here you will get 2. So 1 upon x is equal to 2 by 2 minus x. So 2 minus x is equal to 2x. So here you will get x is equal to 2 by 3. तो बच्चों ये जो x है वो 2 by 3 आ गया, करेक्ट। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। तो पहले हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। इस पार्ट का एरिया आपको अभी हमने निकाल के दिखाया था, क्योंकि ये हाफ बेस इनटू हाइट है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, 2 इंटू 10 20, हाफ करेंगे तो ये यहाँ 10 आ गया, ठीक है। और इसके बाद इसका एरिया निकालोगे, ये एरिया यहां से कितना है बच्चों, ये हो गया 2, 2 to 4, और ये हो गया 10, सो ये प्लस 20 हो गया, करेक्ट। अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का होता है हाफ बेस, बेस कितना है x, और x कितना है 2 by 3 इंटू हाइट, हाइट कितनी निकली है 10, सो ये 10, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच्चों आ गया 10 by 3। ओके, सो हमें इतना ही एरिया चाहिए था। सो वो एरिया हाउ वी कैन फाइंड, टोटल ऐड करो, 10 20 कितना हो गया बच्चों 30, प्लस कितना हुआ 10 by 3 कितना हो गया 3 3 90 प्लस 10, दिस इज 100 by 3, एंड 100 by 3 को आप क्या करोगे 33.3। आई होप सभी को समझ में आ गया कि इसका करेक्ट आंसर 33.3 कैसे है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, एम्स लेवल का क्वेश्चन था बच्चों, तो आप इसको करना जरूर सीखें, क्योंकि आपकी रैंक ऊपर उन क्वेश्चन से हटती है, जो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होगा इसको मास ऑफ द पीपल कैन नॉट सॉल्व, सो इफ यू कैन सॉल्व देन यू विल स्टे अहेड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सो यू विल लव टू सॉल्व इट। आई होप सभी को आसानी से इसको सॉल्व करना आ जाएगा। एक पार्ट का आंसर हम लोग निकाले हुए हैं, दूसरे पार्ट का हमें आंसर निकालना है और उसको ऐड करके निपटा देना है। लास्ट थोड़ा सा टाइम और बचा है बच्चों, 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड और चलेगा, तो आप परेशान ना हो, बस कैलकुलेशन पे ध्यान दें, कैलकुलेशन फास्ट करें। 30 सेकंड कंप्लीट हो गए, अगला 30 सेकंड है, बहुत धीरे धीरे, टाइम नहीं जाएगा, और जब भी जल्दी होती है तो टाइम बहुत तेज से निकलता है। तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अभी से जो बच्चे नीट की तैयारी कर चुके हैं और वो रिवीजन प्रोग्राम देख रहे हैं, वो लोग ध्यान रखें, डेली फिजिक्स में आपको 100 क्वेश्चंस हर हालत में सॉल्व करने हैं बच्चों। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड ऑल्सो वुमेन परफेक्ट। तो 30 हो चुका है, अब आगे हम बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना था, क्योंकि यहां पे निकाला है टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, यहां पे आपको दिख गया है ये एरिया,
तो ये पॉजिटिव लेना है तो आपने ये ले लिया था कितना 100/3। आपको लास्ट में मैंने बताया है पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे इस ट्रायंगल को और यहां से कैलकुलेट करके आपको यहां पे कैलकुलेट करना था, ये और ये। अब बचा हुआ दो पार्ट। अब इसको देखो, यहां ये वाला पार्ट हम लोग ने निकाल लिया था कितना 4/3 निकाला था ना, x और 2 - x, ये 4/3 होगा। तो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हाफ और बेस क्या हो जाएगा 4/3, हाइट कितनी हो जाएगी 20, तो यहां से ये हो गया 2, ये कितना हो गया बच्चों 40/3, तो ये एरिया 40/3 आया। ठीक है, एक और ट्रायंगल है, सो ये ट्रायंगल कितना होगा हाफ, इसका बेस है 2 और इसकी हाइट है बच्चों 20, 2 कैंसिल होगा तो ये आ रहा एरिया 20। तो नीचे कितना हो गया बच्चों 20 प्लस ऑफ 40/3, 3 into 2, तो टोटल देखोगे तो जो नीचे वाला एरिया इसको हम लोग A2 कह लेते हैं, वो फिर से 60 + 40 100/3, तो ये 100/3 हो गया, राइट। और उधर भी 100/3 था। तो जब हमें डिस्टेंस निकालना होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्टेंस निकालनी है, कल मैंने बताया था इसके पिछले वाले लेक्चर में, डिस्टेंस के लिए टी एक्सिस के ऊपर और टी एक्सिस के नीचे दोनों पॉजिटिव लेंगे। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो 100/3 and plus 100/3, then it must be 200/3, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको 66.6 आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ में आ गया है और फिर से रेडी हो जाओ क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। रेडी हो सभी लोग? चलें आगे, मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करने में अच्छा लगेगा, मजा आएगी। 30 + 30 60 सेकेंड्स मिलेंगे इसके लिए। जल्दी करो बच्चों, लास्ट 30 और मिलेंगे वैसे। यस, 30 सेकेंड्स कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा, बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हो, वेल डन बच्चों। अगला 30 सेकेंड्स काउंटडाउन शुरू हो गया है बच्चों, एंड नाउ यू हैव ओनली 20 सेकेंड्स। सोचो क्या क्या चीजें मैंने बताई हैं, रिकॉल करो। यही है पावर ऑफ लर्न एंड इवैल्यूएट, पावर ऑफ एन एकेडमी, अनबीटेबल, अनबिलीवेबल, अनस्टॉपेबल। जल्दी चलो, लास्ट 5 सेकेंड्स, last 5 seconds, go for it. Oh my god, great, and it's completed, and here is your answer, answer number C. Why? Let me tell you, the correct displacement time graph for a particle is as shown, जो आपको बहुत पहले से पता है, और आपको displacement time graph निकालना है, right? So अभी हम यहाँ पर yes change करते हैं कलर। So देखो, the correct displacement time graph कैसे होगा, यहां देखो वेलोसिटी है सो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम xt कर्व का स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। यहां देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो xt कर्व का स्लोप इंक्रीज होना चाहिए। यहां पे स्लोप कांस्टेंट हो गया, यहां पे स्टार्टिंग में 0 to स्लोप कांस्टेंट है तो ये 3 चले गए। यहां पे आप देखो स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो ये हो सकता है। उसके बाद अब कैसे है कि वेलोसिटी क्या हो गई कांस्टेंट, तो स्लोप होना चाहिए कांस्टेंट। यहां स्लोप दे दिया 0 तो ये खत्म हो गया। यहां पे देखो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अब आपके पास सी ऑप्शन बचा और सी करेक्ट हो गया है। अच्छी अप्रोच है, इस अप्रोच से लगाओगे तो आप बहुत आसानी से सीख जाओगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया हम लोगों ने। अगले क्वेश्चन के लिए आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी मच एक्साइटेड एंड रेडी। सो जल्दी से कॉपी पेन फिर से उठा लो और फिर से क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जल्दी सॉल्व करें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ रेस्ट अंडर ग्रेविटी एंड रिबाउंडिंग। आपको 60 सेकंड्स मिलेंगे सोचने के लिए, 1 मिनट है, बहुत ही आसान सा है, जल्दी से सॉल्व करो बच्चों। रिबाउंड सॉलिड सरफेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, फॉलिंग एंड रिबाउंडिंग ऑल्सो, फॉलिंग एंड रिबाउंडिंग, फॉलिंग एंड रिबाउंडिंग, बस इस चीज को ध्यान रखो। 30 सेकंड इसी के साथ आपके कंप्लीट हो गए हैं और अब आपके पास देखो ध्यान से देखो बच्चों,
ओके, लास्ट 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 आपके पास अब बहुत 15 सेकंड का टाइम बाकी है और आपको समझ लेना चाहिए कि पहले नीचे आ रही थी वेलोसिटी और फिर ऊपर हो गई वेलोसिटी। ओके, सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी कांस्टेंट है और अगला क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये आ गया। अभी आपने उसको ऊपर से फेंका था बच्चों, तो वो नीचे v से ऐसे जाएगी, यहां टकराएगी, सपोज वेलोसिटी v1 है, रिबाउंड होगी तो एग्जैक्टली उतनी ही वेलोसिटी ऊपर v के फॉर्म में मिल जाएगी। राइट, सो आप देखो जीरो से स्टार्ट किया था ना, क्योंकि ड्रॉप किया है तो वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया। एक्सीलरेशन आपका g है और वो g कैसा है, कांस्टेंट है। देखो यहां से एक एक इंफॉर्मेशन से सब खत्म हो रहा है, तो वेलोसिटी का जो स्लोप है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। अब बात आती है a और d की। अभी देखो आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आप इस वेलोसिटी को जैसे नीचे आ रही है तो आपने उसको नेगेटिव लिया, तो टकराने के बाद ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए बच्चों, पॉजिटिव। तो नेगेटिव देन पॉजिटिव तो ये वाली तो नहीं है, तो पॉजिटिव। देखो यहां से जैसे टकराई और टकराने के बाद जो नेगेटिव वेलोसिटी से टकराई इतनी ही एग्जैक्टली वेलोसिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव। ओके, तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने बहुत सारे क्वेश्चन सीखे, बहुत सारी चीजें सीखी, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपको बहुत सारी चीज सिखाएगा। 60 सेकेंड्स ऑब्वियसली इसके लिए भी आपको मिलेंगे, गो फॉर इट, तेजी से आगे बढ़ो, बहुत तेजी से। ग्रेट बच्चों, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, तो 30 सेकंड बच्चों कंप्लीट होने वाले हैं, उसके बाद 30 सेकंड का टाइमर और चलेगा। ध्यान से सोचना, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन, v1 माइनस v2, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगले में मैं इसके अगला लेक्चर में लूंगा मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसके बाद का जो क्लास होगा वो लेक्चर होगा रिलेटिव मोशन। राइट, उसमें हम लोग बोट और रिवर वाले, जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती मुझे पता है, उसको करेंगे। रिवर, बोट, रिवर एंड विंड एंड फ्लैग, रेन एंड मैन, ये सारी प्रॉब्लम भी करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो आप इसीलिए कर रहा हूं, जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ओके, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। constantly increases, how shown in figure are the velocity time graph? As you can see, this is the velocity time graph. Okay, of the two particles p1 and p2, ये दोनों यहाँ p1 and p2 पार्टिकल दिया हुआ है, और vt ग्राफ में आपको एक चीज दी हुई है, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, तो क्या इसका एक्सीलरेशन जीरो है दोनों का? नहीं है। तो अगर हम एक का एक्सीलरेशन लें, एक्सीलरेशन ऑफ p2, तो वो क्या होगा बच्चों, tan अल्फा, जीरो नहीं होगा। एक्सीलरेशन ऑफ p1 लें, वो बच्चों क्या होगा, tan बीटा। करेक्ट, दोनों के पास एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, तो ए रिलेटिव अगर देखें तो ए रिलेटिव आपका जीरो नहीं है और पॉजिटिव स्लोप है, तो ए रिलेटिव जब आप AP1 माइनस AP2 करोगे, AP1 माइनस AP2 करोगे, तो ए रिलेटिव जो भी आएगा वो भी आपका पॉजिटिव आएगा। तो अगर ये कह रहा है देयर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, नो, नॉन जीरो बट कांस्टेंट नहीं, क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का अगर एक्सीलरेशन है तो वो भी इंक्रीज करेगा। कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है, तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस होगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो आई होप आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, राइट, और बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सो नाउ द टाइम टू जस्ट एंजॉय, हुर्रे, से हिप हिप हुर्रे। व्हाई? बिकॉज वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी, और ऐसे ही हम रोज हर रोज छोटी छोटी चीजें सीखते जाएंगे, एंड वन डे वी विल क्रिएट द हिस्ट्री, वी ऑल विल क्रिएट द हिस्ट्री, एंड यू ऑल विल बी सेलेक्ट इन 2020। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड एंजॉय, मजे करो, क्योंकि आपने आज बहुत सारी चीजें सीखी हैं। इस क्वेश्चन को आप इस वीडियो को रिवाइज करके देखना, जहां आपसे गलत हुआ था क्वेश्चन, उस कंसेप्ट को जरूर सीखना और उसको रिवाइज जरूर करना 2-3 बार। ठीक है, चलिए, तो एक बार और मैं आपको बता देता हूं
कि स्टेप 1 सभी लोगों को, जिनको भी ये सेशन अच्छा लगा, जिन्होंने भी एंजॉय किया, मजा आया और उन्होंने सीखा है, वो सभी लोग अभी प्ले स्टोर पे जाएं, अभी के अभी जल्दी से प्ले स्टोर में टाइप करें अनअकैडमी, देन यू विल गेट अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बाद क्या करना है आपको बच्चों, उस ऐप को इंस्टॉल करना है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, अपने क्रेडेंशियल उसमें एंटर करने हैं और उसके बाद इस तरह का आपका प्रोफाइल बनेगा जैसे ये स्टूडेंट राहुल का बना हुआ है। और इसमें आप नीट में जाके प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको प्लस में जाके प्लस प्लेटफॉर्म पे चूज करना है नीट, क्योंकि आप सभी लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। और उसके बाद यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, राइट। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, जिसमें बहुत 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 सारी चीजें आप सीखने वाले हो। 1 ईयर के लिए आप सब कुछ देख सकते हो, 2 ईयर के लिए आप देख सकते हो। सो आई विल रिकमेंड go for 1 year or 2 year because it is more economical, right? And now you can see there is something from my side. In referral code you will use, or you can use the MSD live, so you should note down on your copy, or you can take the screenshot of this, then you will use referral code MSD live and then click apply, then you will apply, then you will get more discount on that fee, this fee, okay, this is the fee, whatever the fee you are getting, you will get more discount on that. And then please बच्चों बेल आइकन को प्रेस करना है अनअकैडमी जस्ट नीट के चैनल को, ओके। कि जस्ट नीट में मैंने आपको बताया लर्न एंड इवैल्यूएट, यानी तैयारी जीत की, तैयारी नीट की, मतलब आप अभी सीखो, अभी आजमाओ, अभी चेक करो अभी आपने कुछ सीखा या नहीं। अगर ऐसा होता है कि कहीं पे लूप होल्स आपको मिलते हैं या कुछ भी नेगेटिव होता है तो उसको अभी करेक्ट करो और अभी उसको इंश्योर करो कि आपकी लर्निंग सही चल रही है, बिकॉज लर्निंग एक्सपीरियंस एंड लर्निंग आउटकम बोथ शुड बी वेरी मच एक्साइटेड, ओके। चलिए सब्सक्राइब कर दिया होगा, आई होप आप सभी लोगों ने बेल आइकन को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। और जस्ट नीट लाइव डेली आप समझ ही रहे होंगे कि हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। और बच्चों आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्राइब करो उसमें रेफरल कोड यूज करना MSD live, and when you use this referral code you will get 10% discount on whatever the fee you are going to pay, okay। So I hope सभी लोग बच्चों आपने आज का सेशन एंजॉय किया है। एंड वंस अगेन फ्रॉम माय साइड, माय नेम इज एम शादाब एंड यू आर वाचिंग अनअकैडमी जस्ट नीट चैनल, एंड हियर इज योर MSD सर, एंड गुड मोर लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि कहां पे आपको कंफ्यूजन होता है एक्सीलरेशन नेगेटिव और पॉजिटिव लेने, ओके। ऑल द बेस्ट, गुड मोर लर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।